Good morning, students. Welcome back to our next part of class 7th English, chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will read part 7 of this chapter. So you remember we read in our last 6 parts about a Japanese folk tale, and this is the last part of this story. So let's start the story, and at the end of the chapter I will summarize the whole story for you. So come along, we will start with the last part. Palanquin. What is this? पालकी सुना है आपने बेटा? पालकी जिसको कंधे पे लेके जाते हैं और कोई उसमें बैठा होता है. इट्स अ कवर्ड थिंग, है ना? किसी के बैठने की एक जगह होती है और 4 लोग उसको कंधे पे कैरी करके ले जाते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड अ पालकी. In English, it is called palanquin. Royal van और cart, ठीक है? शाही सवारी जिसको कह सकते हो आप. All right. So it can be a royal van or a cart. Next, pinch. Pinch आप सबको पता है. You all know what a pinch is. You all must have heard a pinch of salt, a pinch of sugar, a pinch of cinnamon, right? Pinch means एक चूंटी. और what you all do in your classes, you pinch your friends. आप उसको चूंटी काट देते हो, है ना? या siblings ऐसा करते हैं, आपस में जो भाई बहन हैं घर पे वो भी ऐसा करते हैं. So pinch means अपनी दोनों अंगुलियों के बीच में कुछ सामान रखना. That is called pinch या चूंटी काटना. Here what does it mean? To hold a piece of somebody's skin tightly between your thumb and first finger, especially in order to hurt somebody. ठीक है? pinch क्या होता है? किसी को चूंटी काटना. और we can also use it, pinch मतलब एक थोड़ा सा कुछ दोनों अंगुलियों के बीच में जितना कुछ हमारा सामान आए वो. Alright, here pinch is used for what? pinch use हुआ है एक pinch of ash छिड़कना, ठीक है? उसके लिए काम में आया है. We will read it in our class. Scattered means फैला हुआ, ठीक है? बिखरा हुआ. Like when you have not put all the stuff in your room at its particular place, it's all scattered. जब आप अपना रूम अच्छे से नहीं रखते हैं, बुक्स कहीं और हैं, शूज़, योर क्लोथ्स, एवरीथिंग ऑन योर बेड, योर टॉयज़ एंड एवरीथिंग, वो सब अपनी जगह पे नहीं है, तो आपके रूम को कहेंगे योर रूम इज़ स्कैटर्ड, ठीक है? बिखरा हुआ. स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया और हैपनिंग सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, फैला हुआ. देन बर्स्ट, टू ब्रेक ओपन सडनली एंड वायलेंटली. बर्स्ट मतलब सडनली, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जस्ट ब्रेक्स. जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलते हैं ना, तो इट जस्ट द कोल्ड ड्रिंक बबल्स शूट आउट फ्रॉम द कैन. यस और नो? वो क्या होते हैं? बर्स्ट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है? एक प्रेशर से, एक वायलेंट, एक तेज प्रेशर से वो चीज़ बाहर आती है. दैट इज कॉल्ड बर्स्टिंग. सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. So you remember in our last part we read that the old man who was the kind master of the dog who died, he was standing on a tree and he just spread the ashes on that tree which started blooming, okay? And a sweet fragrance or every air or every part of that area was perfumed. ठीक है? एक खुशबू सी महक गई थी. उस जैसे ही उस सूखे पेड़ के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी ऐश डाली, तो क्या हुआ था? जहाँ से राजा गुजर रहे थे उसके पास उन्होंने जैसे ही सूखे पेड़ पे ऐश छिड़की, तो पूरा पेड़ एकदम फ्लावर्स से भर गया था, पिंक कलर से ब्लूम हो गया था और बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस वहाँ पर फैल गई थी. तो जब ऐसा हुआ all of a sudden, because it was a winter time, ये सर्दियों का टाइम था, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था. So everybody was surprised. अचानक से क्या हुआ? जो पालकी का जो ड्राइवर था या जो उसकी रॉयल वैन का जो ड्राइवर था,
उसकी नज़र उस ओल्ड मैन पे पड़ी जो उस ट्री के ऊपर खड़ा था, क्योंकि इट वॉज अ मिरेकल, ये एक मैजिक हुआ था, है ना। तो उसकी जैसे ही नज़र उस आदमी पे पड़ी, उसने उसको देखा. He was about to call out to him in an angry tone. वो उसको जोर से गुस्से में चिल्लाने ही वाला था. क्यों बेटा? Why he was angry? Because I told you in the last part that whenever a king or a daimyo's procession passes by a village or anywhere, all the people who are beside the road or in the streets, they have to kneel down, or either they have to lay down on the road and look downwards. They cannot look at the ruler. ठीक है, वो उस लॉर्ड के ऊपर देख ही नहीं सकते किसी भी नज़र से. और उस बूढ़े को जो पेड़ के ऊपर खड़ा था, उसको ऐसे देख के तो वो चौंकना ही था. और क्योंकि उसने रूल तोड़ा था, तो वो गुस्से से, जो पालकी का जो ड्राइवर था, वो गुस्से से उस पर चिल्लाने ही वाला था. बट seeing he was such an old fellow, पर उसने देखा कि ये बहुत ही बुजुर्ग आदमी है. ओके, he pretended not to notice him, और उसने pretend किया. pretend क्या होता है बेटा? नाटक करना. ठीक है, he pretended that he has not seen anybody. उस पालकी के ड्राइवर ने उस बुजुर्ग को देख लिया था पेड़ पे चढ़े हुए, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक किया या ऐसा अभिनय किया कि उसने किसी को नहीं देखा. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था. एंड पास्ड हिम बाय, और वो उस पेड़ के बगल से निकल के चला गया. कोई पनिशमेंट नहीं मिला उसको. सो व्हेन द daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. जैसे ही उनकी जो वैन थी वो आ रही थी पास में, उसने क्या किया? एक पिंच लिया, एक चूंटी भर के, या एक पिंच किसका लिया? ऐश का. और जिस पेड़ पे वो चढ़े हुए थे उस पे पूरे पे उन्होंने वो ऐश को स्कैटर कर दिया, छिड़क दिया. ठीक है, बिखेर दिया. और वो जो ट्री था, जैसे ही राजा या डायमियोस की वहाँ से पालकी निकली, तो क्या हुआ? वो पूरा ब्लूम करने लग गया. वो सूखा वृक्ष जो था, दैट ड्राइड और द विदर्ड ट्री ऑन विच द ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग, वॉज ब्लूमिंग. ओके, इट वॉज ब्लूमिंग. वो ब्लॉसम, ब्लॉसम आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में? फूलों का गुच्छा. ठीक है, बहुत सारे फूल उसमें खिल गए थे. ऑल राइट, एवरीबडी गॉट इन टू दिस? कम. डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश या संतुष्ट. सिल्क रोब्स. रोब्स यू ऑल नो, क्लोथ्स. ठीक है, जो आपके कपड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड रोब्स. जो राजा के कपड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड robes. And silk robes means the material of the cloth which is made by a silk thread. सिल्क का जो धागा है, रेशम का जो धागा है, उससे बने हुए कपड़े. Alright, a thread or fabric made from this fiber. Which fiber? Silk fiber. Silk या रेशम के फाइबर या धागे से जो बना हुआ कपड़ा है, उसको बोलते हैं silk robes. Castle. What is the meaning of castle? Castle means बेटा महल. ठीक है, राजा जिसमें रहते थे. A large building with high walls and towers that was built in the past to defend people against attack. Now you remember the forts you must have seen. आपने कहीं के भी जो फोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे बहुत पहले ज़माने में राजा महाराजा रहते थे. Have you ever visited to some of the place? Like you must have seen Kumbhalgarh Fort, Chittor Fort, Amer Fort. There are so many even in Rajasthan. Okay, so you must have seen what a fort look like. It has a very tall or high outer wall. Okay, and it's very thick, and inside it there is a lot of space, and on the top of a hill there is a house or the towers made for the king and his family to reside. ठीक है, castle क्या होता है? Castle is a building
which is made on a hillside or on a top of a hill which is having high walls in order to keep the enemy away. ठीक है, दुश्मन जो है या शत्रु जो है वो उनके अंदर एंटर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं कैसल. ठीक है. gleefully, happily. glee means happy, gleefully means happily, बहुत खुशी से. The delighted daimyo ordered the train to be stopped. Delighted, why? Delighted means he was happy. Daimyo happy क्यों था? Because he saw the withered tree bloom all of a sudden. तो वो बहुत खुश हो गया और उसने क्या बोला? Ordered the train to be stopped. और उसका जो प्रोसेशन जा रहा था उसने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि इसको रोको, stop it at once. And got out to see the wonder. And he just came out from his palanquin and he wanted to see the miracle or the wonder. He came out of his cart and he wanted to see the miracle or the wonder which has happened. Wonder मतलब एक आश्चर्य की बात, एक अद्भुत घटना. Calling the old man to him. Now the daimyos had seen the old man who was standing on the tree. He called the old man to come down. उसने क्या किया? daimyos ने उस बुजुर्ग को नीचे बुलाया. He thanked him. और उसने क्या किया? उसको थैंक किया, उसको मन से धन्यवाद किया. And ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. And what did he award him? उसने उसको खुशी के मारे कई भेंट देने की कोशिश की. क्या क्या उनको भेंट दिया बेटा? सिल्क रोब्स, अच्छे से सिल्क के कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर, प्रिटी, जो राजमहल में पहनते थे. ओके, ही गेव हिम सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक्स, वहाँ पे कोई फेवरेट डिश होती होंगी, बहुत सारे वो दिए. ही गेव दम फैंस ऑल्सो एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन. और भी बहुत सारे पुरस्कार उसको देने के लिए कहा. ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी. He even invited him to his castle. And what did the daimyos do? He invited the old man, who was very kind, to come and visit his castle. Daimyos ने उस बुजुर्ग आदमी को अपने ही महल में बुलाया, invite किया. ठीक है. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. Now the old man was very happy and he went home with a big smile on his face, and he went home and shared everything which happened with his beloved wife. वो बहुत खुश था और वो खुशी के मारे अपने घर गया और अपनी वाइफ को सारी बातें बताई. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. Now, you remember the greedy neighbor, always envious of the good neighbors. जो greedy neighbor था वो हमेशा जलन रखता था किससे? अच्छे जो neighbors थे उनसे. सबसे पहले dog को उन्होंने kill किया, they killed their dog. Secondly, what did they do? They destroyed or chopped the mortar and the mill which they made. Yes or no? mortar और mill को उन्होंने काट के जलाने के काम में ले लिया. Now at this third point of time, when again the old man and his wife they are rewarded by the king, या जब उनके जीवन में जब तीसरी बार कोई खुशी आई तो इस greedy neighbor ने वापस से कुछ प्लान किया. और क्या चाहा बेटा? उन्होंने ऐश ली, थोड़ी सी ऐश उनके घर में भी थी, यू रिमेंबर. उन्होंने ऐश कलेक्ट की और कहाँ चले गए? Went out on the highway. What was on the highway? हाईवे पे क्या था? The procession of the daimyos was moving. daimyos का जो पूरा ट्रेन था वो पास हो रहा था वहाँ से. तो उसने ऐश ली and just he went on to the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and he waited until the train of the daimyos came to that place. और उसने इंतज़ार किया जब तक daimyos की procession वहाँ पर नहीं पहुँची. And instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. And you all remember that it was a rule or a tradition or a custom
to kneel down or lie down looking downwards whenever a daimyos or a ruler or the lord passes by the village. He did not do that. He climbed up a cherry tree which was withered. वो एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया जो कि सूखा हुआ था, ठीक है, और दूसरे लोगों की तरह घुटनों के बल वो नहीं बैठा. When the daimyo himself was almost directly under him, जब डायम्योस की जो पालकी थी वो ऑलमोस्ट उस ट्री के नीचे आने ही वाली थी, डायरेक्टली उसके नीचे आने ही वाली थी, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री. उन्होंने क्या किया, उस ग्रीडी नेबर ने क्या किया, हैंडफुल मीन्स पूरा हाथ भर के और ऐश उस ट्री के ऊपर स्कैटर कर दी, ठीक है, पिंच नहीं, एक पूरा हाथ भर के, मुट्ठी भर के और पूरे स्कैटर कर दिया. किसको, ऐश को, उस ट्री पर, which did not change a particle. And what happened? Nothing happened. Okay? Not even a single particle changed. कुछ भी नहीं हुआ, वो ट्री ऐसा का ऐसा ही था, as it is ही था. A particle means even a little bit. ठीक है, कुछ छोटा सा भी कोई चेंज नहीं आया उस withered tree में. It was as it was. All right? Second is seized. Seized means to caught. किसी को पकड़ लेना. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife. And what happened? The tree, the withered tree was as it was. Nothing happened to it. Not even a single particle of the tree changed. But instead of that, the ash along with the wind, it spread all about and it went into the nose and eyes of the daimyos and his wife. जो डायम्यो और उसकी वाइफ नीचे से जा रहे थे पालकी में, उनकी आँखों में और नाक में उस हवा के साथ वो पूरी ऐश जो थी, वो पूरी राख जो थी, वो घुस गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग. स्नीजिंग यू ऑल नो, छींक आना, राइट? यू नो द मीनिंग ऑफ स्नीजिंग, छींकना. तो जब हमारी नाक में या आँख में कोई डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली स्नीज आती है ना बेटा. We sneeze at that time because the hair inside our nostrils they irritate. Okay, वो move करते हैं तो हमको sneezing आती है. And choking. Choking कैसे? क्योंकि उनकी सांस में भी वो चली गई थी dust या जो ashes थी, तो उनका जो गला था वो भी choke हो रहा था, ठीक है? It spoiled all the pomp and dignity of the procession. And this incident spoiled all the charm, all the dignity of the procession. जो वो जा रहे थे लोग, उनकी जो ट्रेन जा रही थी, उसका सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, ठीक है, पूरा मज़ा एक पल में ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. The man whose business it was to cry. और जिस आदमी का या जिस सोल्जर की ये ड्यूटी थी कि उसको चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलना है कि आप नील डाउन हो जाओ, नील डाउन हो जाओ, उसने क्या कहा, गेट डाउन ऑन योर नीज. जिसकी ये ड्यूटी थी ना कि आगे चलते रहो पालकी के एंड आस्क ऑल द पीपल टू गेट डाउन ऑन योर नीज, और सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाएं क्योंकि पीछे सवारी आ रही है डायम्योस की, है ना. तो उसने क्या किया, ही सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. सीज मीन्स कॉट, पकड़ लिया. किसको पकड़ लिया, उस ग्रीडी नेबर को पकड़ लिया जो उस पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, है ना. द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसकी कॉलर पकड़ी, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से नीचे उतार लिया, ठीक है, खींच के. ड्रैग मीन्स घसीटना, और उसको घसीट कर पेड़ से नीचे उतार लिया. एंड ही वॉज पुटिंग हिज हैंड्स ऑन हिज कॉलर एंड टम्बल्ड हिम and his ash basket into the ditch by the road. Tumbled मतलब उसको लुढ़का कर लेकर आया, लुढ़का कर लेकर आया एक खड्डे में जो रोड के पास में था. Ditch means खड्डा. Green here healthy, active and prosperous. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है healthy, active और prosperous, खुश. Then beating him soundly he left him for dead. और उसको जो मारा, इतना ज़ोर से मारा, that the greedy neighbor died. ठीक है, उसको इतना मारा उस सोल्जर ने that he finally died.
Thus the wicked old man died in the mud. और जो विकेड ओल्ड मैन था वो मिट्टी में ही मर गया. आपको याद है उन्होंने डॉग को भी ऐसे ही मारा था, है ना? सो ऑलवेज डू गुड डीड्स टू अदर्स बिकॉज वॉट एवर वी डू कम्स बैक टू अस इन रिटर्न. ठीक है, हम जैसा किसी को बोलते हैं, जैसा किसी के साथ एक्ट करते हैं, वही एक्शन हमको रिटर्न में मिलता है बेटा. सो ऑलवेज वी शुड बी काइंड टू अदर्स, वी शुड बी जेनरस टू अदर्स एंड वी शुड बी very kind hearted as well, okay, so that we will also get every time all these things in return. ठीक है, किसी से हम गुस्सा रखेंगे तो बदले में गुस्सा ही मिलेगा, किसी से आप प्रेम से रहोगे तो बदले में आपको भी प्रेम मिलेगा. ठीक है. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Green old age, I told you, हैप्पी एंड प्रॉस्परस. ठीक है, ग्रीन ओल्ड एज मतलब अच्छे से उनका जो बुढ़ापा था, ये जो बूढ़ा उनका एज था वो अच्छे से निकली. सो विलियम एलियट ग्रिफिथ्स wrote this chapter and I hope all of you understood this chapter very well. Do you remember? It's a Japanese folk tale in which there was an old man and a woman who did not have any child of their own. They had a pet dog, Muko. They loved him as if it was their own child. One fine day, Muko found some wealth or some gold coin heap for the old couple. They got rich, they bought a piece of land for themselves, gave a feast to their neighbors, and also they just distributed some of the gold coins to their poor neighbors. But one of the greedy neighbor, they asked the dog to help them to get some gold coins like he found for his master. But the dog did not do that and he was killed to death by the greedy old neighbors and he was buried inside the earth. One fine night he came to the dream, the spirit of the dog came into the dreams of his own master and asked him to cut the pine tree which is over his grave, so that he could make a mortar and a hand mill out of it to make rice pastries and bean sauce. So when the master did all these things, he found that the rice pastry and the bean sauce, it turned into a heap of gold. All this thing was being watched by the greedy neighbor from the window. Next morning she came and borrowed the mortar and the mill and also started to make the same thing. But instead of gold coins heap, there was a heap of foul smelling worms inside their home. So they got angry again and they chopped the mortar and the mill into pieces and they burnt in the fireplace. Now the spirit of the dog again came to his master's dream and he said that the mortar and the mill are chopped off and they are burnt by their neighbors. So you just collect the ash from there and bring it in your home. You can use it to sprinkle on the withered trees and you just see what happens. So the old man did the same. He brought the ash, he just sprinkled it on the tree in their garden. It blossomed, it had lots of cherries and it turned into a pink beautiful tree with lots of flowers and leaves. Okay, so one day a procession of king or the daimyos was passing by their village. The old man climbed up a tree and he just sprinkled a pinch of the ash on that tree he was standing, which was a withered tree. All right, and when the procession passed by, he just sprinkled the ash and it turned into a very beautiful tree having a beautiful fragrance all around. The king gave him some awards being happy on his action and on this wonder. He awarded him with so many things, and the greedy neighbor, when he came to know about this thing, he also tried to do the same process, but instead of making the withered tree bloom, the tree was as it is, but instead of that, the king and his wife, they got sneezing and choking in their nose and throats when the ash was spread all over by the wind. They punished him, they killed him, and this is how the end of the story is. Like how you do for others, you will get the same thing back to you in return. ठीक है, तो ये एक छोटी सी जापानीज फोक टेल हमने
पढ़ी थी बेटा, जिसमें एक ओल्ड कपल रहता था जापान में, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक डॉग था म्यूको, जो उनको बहुत प्यारा था, अपने बच्चे की तरह रखते थे। व्हाट हैपेंड देन, एक दिन म्यूको ने उनके लिए एक खजाना ढूंढा और फिर वो दंपत्ति ने अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, अपने नेबर्स को खाना खिलाया और कुछ गोल्ड कॉइन्स उनमें बांट दिए, क्योंकि वो बहुत ही दयालु थे। तो क्या हुआ, जो ग्रीडी नेबर थे उन्होंने उस डॉग को, म्यूको को ले जाकर कोशिश की कि वो उनके लिए भी कुछ वेल्थ फाइंड करे, कुछ गोल्ड कॉइन्स ढूंढ के लाए, पर म्यूको ने ऐसा नहीं किया। तो म्यूको को उन्होंने गुस्से में आके मार डाला और मिट्टी में दफना दिया। तो एक सपने में, एक दिन रात को सपने में अपने मास्टर के डॉग की जो आत्मा या स्पिरिट थी वो आई और उसने कहा कि मेरी ग्रेव के पीछे जो पाइन ट्री है उसको काटो, उससे मोर्टार और मिल बना लो ताकि आप राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बना पाओ। तो उसके मालिक ने ऐसा ही किया और क्या हुआ, लास्ट में जब उसकी राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बना तो वो एक गोल्ड कॉइन्स के ढेर में चेंज हो गया। और ये सब चीज़ें पास के नेबर ने ध्यान से देखी, जो ग्रीडी थे बहुत, जिन्होंने उस डॉग को मारा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो नेबर आई और उसने वो बोरो किया कि मुझे भी कुछ बनाना है, आप ये दे दो। तो वो बहुत अच्छे थे ओल्ड कपल, उन्होंने उसको वो दे दिया। जब वो बना रही थी राइस पेस्ट्री और बीन सॉस, तो क्या हुआ बेटा, गोल्ड कॉइन्स का ढेर मिलने की बजाय उनको मरे हुए बदबूदार कीड़ों का ढेर मिला। तो वो वापस गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, जो मिल और मोर्टार था उसको टुकड़े टुकड़े करके काट दिया और अपने घर में जलाने के काम में ले लिया। ठीक है, तो उस रात वापस से फिर डॉग की जो स्पिरिट थी वो अपने मालिक के सपने में आई और उसने बोला कि जो पड़ोसी हैं उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, आप जाके उस मोर्टार और मिल की लकड़ी की ऐश लेके आओ और कोई भी सूखा पेड़ हो उस पर थोड़ा सा छिड़कना और फिर देखना क्या होता है। तो उस मास्टर ने ऐसा ही किया और अपनी वाइफ के साथ वो ऐश लेकर एक अपने घर के गार्डन में गया, जहाँ पे एक सूखा वृक्ष था चेरी का, उसके ऊपर जैसे ही स्प्रिंकल किया सब कुछ वो ऐश, तो पूरा ट्री पिंक कलर में ब्लूम हो गया। ठीक है, तो ये उसका चमत्कार था उस ऐश का। तो एक दिन राजा वहाँ से पास आउट हो रहे थे, जो डायनियोस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो वहाँ से पास आउट हो रहे थे। तो क्योंकि वो उसको पसंद करता था ओल्ड मैन, उसने सोचा मैं उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता हूँ। तो एक पेड़ पे चढ़ गया और उस पेड़ पर उसने जैसे ही राजा की पालकी आई तो स्प्रिंकल कर दिया एक पिंच उस ऐश का उस पेड़ के ऊपर। तो सब बहुत खुश हो गया, वो पेड़ ब्लूम हो गया और हर जगह हवा में बहुत ही खुशबू फैल गई। तो राजा इस एक्शन से बहुत आश्चर्यचकित हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बुज़ुर्ग को बहुत सारे अवार्ड्स दिए। ये सुन के जो पड़ोसी थे, जो ग्रीडी नेबर्स थे, वापस से उन्होंने कोशिश की कि हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें भी ऐसा ही अवार्ड मिलेगा राजा से। जैसे ही राजा की सवारी आई, उन्होंने उस पेड़ पे छिड़का, मुट्ठी भर के पूरी ऐश छिड़की। तो क्या हुआ, पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन राजा और उसकी वाइफ की नाक में और गले में वो ऐश चली गई हवा के साथ और वो छींकने और खांसने लग गए, है ना। तो राजा को गुस्सा आया और उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ के जो मारा कि वो डेड ही हो गया, उसको लास्ट में डेथ ही मिली। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे करेंगे ऑब्वियसली बुरा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जिस बुजुर्ग फैमिली ने अच्छा किया उसको एंड तक अच्छा हुआ उसके साथ, और जो अच्छा नहीं कर रहे थे वो लास्ट में परेशान हुए या डेथ उनको मिली। ठीक है, सो दिस वॉज द chapter The Ashes That Made Trees Bloom. I hope you all understood this chapter very well. We will meet in our next class with question answers. Until then, keep studying. Have a great day, beta.